Birwa Solanki, working as an assistant professor in CSE department in Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today we will discuss the Python programming language, and we discuss about the last unit, that is the fifth unit, and we already recorded the first lecture for last unit. So we already covered the few things about the table of contents. That is, we already discussed about the recorded Python package, creation of package, and then simple program using the built-in functions of the package. And we also discuss about the matplotlib library, what is the function of matplotlib library, and the basic program of matplotlib library to visualizing the value on the graph. So and we some discussion about the NumPy library already in the previous lecture, and some other things are we discuss about the basic and advanced program in the NumPy library, and then we discuss about the pandas library in this lecture. So we go and in the last lecture here we discuss in the previous recorded lecture, and now we discuss about the next things of NumPy library in the array. So here we discuss about the NumPy library to how to insert the data into the array using the NumPy library, and how to access the data, and how to print the data, and how with some basic operation to perform on the NumPy library. So here we see the basic operation of the NumPy library on the array. So we discuss one by one in this lecture. So here we discuss simple first step of the NumPy library, suppose in Python programming, to import the library in the program. So here we import NumPy library, and how we'll use the NumPy library as a NP. So now defining the rank 1 array. So here the 2-dimension array, and how to insert the value in the 2-dimension array. np dot array, and the value of the array can be represented in matrix form 1, 2 and 3, 4. This is the value in inserted into the 2-dimensional array. The value to given into the variable a, and then defining the array 2. So here defining np dot array, and the value of the second array can be represented in matrix form 4, 3, 2, 1, and adding 1 to every elements. For which array? Adding 1 to every element. In which array? In array 1. तो array 1 में हम क्या करेंगे, 1 वैल्यू इन क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं. किस में? टू ईच एलिमेंट्स ऑफ array 1. So how to represent this value to add 1 in each element of array 1? तो इसको हम we write like a plus 1. So here the value would be in the output 1 plus 1 यानी कि 2, 1 plus 2 यानी कि 3, 1 plus 3 यानी कि 4, 1 plus 4 यानी कि 5. And then
subtracting 2 from each element for which array? Subtracting 2 from the each elements from array B. array B क्या है आपका? array B आपका ये है, ये आपका array A है। तो यहाँ से क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। किस में से? सब्सट्रैक्ट करेंगे किस में से? इसमें से। तो इसमें से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 1 हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे किस में से? तो हाउ टू राइट? राइट b माइनस 1, ये b माइनस 2। तो 2 हमने सब्सट्रैक्ट किया, तो इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। देन हम इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा आपका? 2 हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे 2। तो इसको जैसे मैट्रिक्स में यदि हम देखें तो एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं कि हर एलिमेंट से 2 सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसमें से मैथमेटिकली यदि मैट्रिक्स में देखा जाए तो इसको हम दिस मैट्रिक्स एंड कैन बी सब्सट्रैक्ट एज ए 2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। मैट्रिक्स वे में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। 2 वैल्यू है ईच एलिमेंट, तो इनमें से रिस्पेक्टिव वैल्यू और में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? इस तरीके से आपका कितना बचेगा? 2। 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, और ये 2 में से 2 गया तो 1 में से 2 गया तो -1। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपका इस वाले का आउटपुट आएगा, ये आपका इसका हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये आउटपुट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? नाउ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स हैं अपने पास, ये अपना जो फर्स्ट एरे है ए एंड सेकंड एरिया बी, इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इसके एलिमेंट्स का जैसे सबमिशन करना हो। जैसे मान लीजिए इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू को सम कर दिया जाए, इनकी वैल्यू को सम कर दिया, तो इसको कैसे रखेंगे हम? तो इसके लिए राइट करने का है परफॉर्म यूनिटी ऑपरेशन एंड प्रिंट मैसेज, then print the message on the screen sum of the array elements. इसका how to sum or a dot sum operation function we can call. So इसमें a की बात की गई है, तो a के जो भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? a के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, ये आपके एलिमेंट्स हैं। इनका मुझे सम करना है, तो क्या होगा? 1 + 2 यानी कि 3, 3 + 3 यानी 6, 6 + 4 यानी कि कितना आ गया? ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है? एक क्या है? एलिमेंट की वैल्यू है। किसकी है? ये सभी एलिमेंट की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग 10। देन उसके बाद एडिंग 2 एरेज। हाउ टू ऐड 2 एरेज? कैन बी सी a + b, a + b। ए अपने पास क्या है? ए अपने पास 1, 2, 3, 4। b क्या है अपने पास? v is that। तो वैल्यू ऑफ द v एरे 4, 3, 2, 1। इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आउटपुट क्या जनरेट होगा? 1 + 4 यानी कि 5, और 2 + 3 यानी कि 5, एंड 3 + 2 यानी कि 5, देन 4 + 1 यानी कि 5। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या प्रिंट होंगी आपकी? दिस वैल्यू। एंड द आउटपुट ऑफ द एरे सम दिस। तो एक आउटपुट तो क्या आने वाला है? एक आउटपुट ये आने वाला है। सेकंड आउटपुट क्या आने वाला है? ये आने वाला है। थर्ड आउटपुट क्या आने वाला है? ये आने वाला है। और लास्ट आउटपुट यानी कि ये आने वाला है। सो वी सी द आउटपुट ऑफ दिस। सो हियर द 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से वैल्यू आ गई। देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है आपकी? ये आपकी 2, 1, 0, -1। 2, 1, 0 और -1। सम ऑफ द और एलिमेंट्स, तो ये कितनी आ गई? 10। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये 10 वैल्यू थी जो आएगी। देन लास्ट में जो आउटपुट था a + b एरे का, तो इस तरीके से इसका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। तो a + b यानी कि ये आउटपुट आपके क्या होगा? तो इस तरीके से आपका आउटपुट, ये आपका इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी अपने पास जो प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग क्या क्या वैल्यूज़ हैं और किस तरीके से इसका बेसिक ऑपरेशन कैसे हो रहा है, कैसे किस तरीके से एक एरे में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दूसरे एरे में क्या करना है,
और उसके ईच एलिमेंट में किस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, टू एरे को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें देखें। दिस द आउटपुट फॉर द previous. And now discuss the next concept of the NumPy library, that is the NumPy array slicing. Slicing means that something is separated from the main values. It can be like as a subset of the sets. Some basic principle like that. Suppose that we have the some values, we have some data elements like the 5, 6, 7, 8. Suppose this is the element, and we want to print the value of this data. Suppose we want to first two values, so we write this. But in the Python programming, how to slice the array. So by use the help of the indexing, we can print the values. So how to write 1, 0. तो फर्स्ट वैल्यू आपको प्रिंट करेंगे, सेकंड वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो व्हाट इज द स्लाइसिंग एरे? Slicing in the Python means taking elements from one given index to another given index. We pass slice instead of the index like this. So we write start and ends, and can also define the steps for this start and end, how to increase and decrease in the indexing. And slicing element from the index 1 to 5 from the following array. इस सिंपल प्रोग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इस एलिमेंट्स, इस लिस्ट में से कुछ वैल्यूज़, एरे की वैल्यूज़ को हम स्लाइसिंग करना चाह रहे हैं। तो स्लाइसिंग कहाँ से, इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडेक्सिंग स्टार्टिंग होती है आपकी, स्टार्टिंग होती है 0 से। तो 0 एलिमेंट्स इज़ 1 एंड 1 इंडेक्स वैल्यू 2 और 2 इंडेक्स 3 एंड 3 इंडेक्सिंग 4 और 4 इंडेक्सिंग 5 और 5 इंडेक्सिंग वैल्यू 6 एंड 6 इंडेक्सिंग वैल्यू 7। सो हमें क्या करना चाहिए, 1 इंडेक्स से लेके डेटा चाहिए, यानी कि 1 इंडेक्स कौन सा गई है, यहाँ से लेके डेटा कौन तक चाहिए, हमें 5 तक चाहिए। तो 5 का है, 5 का ये वैल्यूज है, 5 यानी यहाँ तक डेटा चाहिए। पर लास्ट वैल्यू को क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू को इसमें एक्सक्लूड करके रखता है अपना स्लाइसिंग। तो ये वैल्यू कौन कौन सी प्रिंट होने वाली है यहाँ पर, लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 में है तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये दिस वैल्यू नॉट इंक्लूड। So 6 value not include in the slicing. So the value print in the slicing 2, 3, 4, 5. Only 2 or 3, 4 and 5 value can be printed. So here we see how to write this. The import the numpy np, ये हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। देन इसके बाद एरे वैल्यू है, इनको इंसर्ट करा लिया इन वैल्यूज को। देन एरे एक वेरिएबल ले लिया, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब स्लाइसिंग के लिए एरे वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। देन इसकी स्लाइसिंग कर दी हमने, कहाँ से, इंडेक्सिंग 1 से। 1 पे क्या है, 1 पे 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू प्रिंट होगी, कहाँ तक करना है, 5 तक। तो 5 इंडेक्सिंग कहाँ है, यहाँ, तो इस वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे। तो 2, 3, 4, 5, कौन सी 2, 3, 4 एंड 5 वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपकी प्रिंट हो जाएंगे। तो आउटपुट विल बी the above program, the output is 2, 3, 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, NumPy लाइब्रेरी में एरे स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। So discuss the next some basic advantage of the NumPy data type. Data type in the Python, by default Python have these data type: strings and the integer, float, boolean and complex, etc. Now discuss the next feature of the array, that is sorting. Sorting is the basic and the basic and the most important used in data structure for the
some given element to sort in ascending and descending order, so we can use the sort method or function to perform the ascending and descending operation. So here we see some example for the sorting. First we import the NumPy library, import NumPy as a NP, and then insert the values. So insert the value, use the np dot array यूज किया हमने, देन उसके बाद वैल्यू को इंसर्ट करा दिया. वैल्यू इज दैट 3, 2, 3, 2, 0, 1, and then perform the sort operation on the array element. The np dot sort ऑफ फंक्शन हमने यूज किया, और किसको सॉर्ट कराना है, एरे एलिमेंट में जो भी वैल्यू है. तो वैल्यू किस में, एरे में, तो इसको वैल्यू को हम इसमें यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट को. सॉर्टिंग में क्या जाएगा, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से इसका आउटपुट हो जाएगा. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू जो भी एरे में वैल्यू है उनको आप सॉर्ट कर सकते हैं. Now we will discuss about the most powerful and advanced feature in the Python, that is the pandas library. Panda library, the most powerful and advanced feature of the Python programming to perform the basic operation on the mathematics, like the analysis of the given data and the mean, max, etc. operation, and for the this library also used for the scientific and engineering purpose, and the Panda library use the to insert the data for the that purpose. We use the list, dictionary, and CSV file also. So and SQL tables. So what can you do using the Python? तो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक हम क्या क्या फंक्शन हैं जो उनको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो बाय द हेल्प ऑफ द पांडास लाइब्रेरी वी विल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन लाइक द डेटा सेट क्लीनिंग एंड मर्जिंग एंड जॉइनिंग. सब वो अपने पास गिवन डेटा है, उसमें कुछ रॉ डेटा है, उसमें से हमारे पास उसको क्लीनिंग करना है. तो उसमें से जो रॉ डेटा है, जो अनयूज्ड डेटा है, या फिर उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं और उस तरीके से हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट को हमें क्लीन करना रहेगा, है ना. तो इसके लिए हमें क्या करें, नॉइज़ वैल्यू वगैरह हैं, तो इसके लिए नॉइज़ वैल्यू है, आउटलायर वगैरह हैं, या मिसिंग वैल्यूज़ हैं. तो उस तरीके से उनको क्लीनिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पांडा लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद मर्जिंग कर सकते हैं. मल्टीपल सोर्स से डेटा हमारे पास है, तो उसको एक तरीके से क्या करना, मर्ज करना है, तो उसकी इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं. जॉइनिंग, दो डेटा को आपको ज्वाइन कराना है, टेबल वगैरह को इस तरीके से भी ज्वाइन करा सकते हैं. दो टेबल हैं तो उनको भी ज्वाइन करा सकते हैं. देन इजी हैंडलिंग दी मिसिंग वैल्यूज़. तो जो भी अपने पास डेटा सेट है उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो उनको मैनुअली करें, या तो मैनुअली डेटा सेट में करें. और मैनुअली क्या होता है कि वी कैन परफॉर्म द मैनुअली ऑपरेशन, सो वी कंज्यूम द मोर टाइम टू परफॉर्म द टू क्लीनिंग द डेटा और handle the missing values. and then next feature is the column can be inserted and deleted from the data frames. Data frame में से data frame is the feature of the Panda library, so we can use insert the column and delete the column from the data frame using the Pandas library. Data frame like the table structure, and then powerful group by functions for performing the split and apply combine operation on data set. And the last feature is data visualization. So if we have the data set and multiple value, the most thing is that how to visualize the data. So Panda library also have the visualizing capacity to visualize the given data. So how to import the Panda library? So like the Matplotlib library and the NumPy library,
we can also same use import the pandas library. So we import the pandas library like import, we write the import, then library name, then as pd. सपोज हम इसको पांडा इस तरीके से लाइब्रेरी का ही नाम इस तरीके से यूज नहीं करना चाह रहे, कोई सिंपल नाम यूज करना चाह रहे हैं तो एज करके हम इसको लिखते हैं. तो पांडाज को हम डायरेक्टली कैसे यूज, इनडायरेक्टली कैसे यूज कर रहे हैं, पीडी. पांडाज को हम ना लिख के पीडी का यूज कर रहे हैं, किसको यूज करने के लिए, पांडा लाइब्रेरी को. इसी तरीके से हम उसमें भी यूज कर सकते हैं. तो इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे एक तो सीरीज है, एक डेटा फ्रेम है. तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट वी सी द pandas series. The panda series is a one-dimensional labeled array capable of holding the data of any type, like the integer, string, float, Python object, etc. The axes labeled are collectively called the indexes. And the next is the pandas series is nothing but a common column in a Excel sheet. Labels need not be unique but must of the accessible type, and the object support of both integer and labels. So how to create the series? To create the series in pandas library, we see with the help of this program how to create the series in the pandas library and how to print the series in this program. So we see first of all we insert the pandas library. So import the pandas as a pd, then import the numpy library as a np and creating the empty series. हमें क्या करना है, एक empty series क्रिएट करनी है. देन उसके लिए क्या करेंगे, pd.series, तो हमने ब्रैकेट लगा दी सिंपल, कोई वैल्यू पास नहीं की तो ये empty series क्रिएट हो जाएगी. देन ये आपका वेरिएबल हो गया. देन इसके बाद क्या कर देंगे, इसको प्रिंट करा देंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रिंट. किसकी हेल्प से, प्रिंट मैसेज की हेल्प से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं. कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है उसके साथ में, पांडा सीरीज ये मैसेज हो गया. और इसके साथ में जो सीरीज है एम्प्टी है, तो एम्प्टी सीरीज जैसे क्या हो जाएगी, एक एम्प्टी सीरीज यहाँ से क्रिएट हो जाएगी. देन उसके बाद सिंपल एरे, एरे की वैल्यू को इंसर्ट कराने सीरीज में, तो कैसे करेंगे, np.array वैल्यू क्या है आपकी, g, e, k, s. तो ये क्या है आपकी, ये आपके कुछ स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग क्या है आपका, स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, सिंगल कोड या डबल कोड में, किसके फॉर्म में, ये आपका लिस्ट के फॉर्म में डेटा. अब इसको क्या कराना है, सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म करनी है इस पर. तो pd.series सीरीज के फॉर्म में डेटा को प्रिंट करा देंगे, यानी कि एक कॉलम के फॉर्म में. सीरीज नथिंग, इट इज द लाइक अ कॉलम data structure. How to represent a series in the output, it is represented as a column, like a column. So series we print here, print message pandas series and s here, इससे क्या होगा, डेटा सीरीज के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा. तो आउटपुट किस तरीके से देख सकते हैं हम, तो आउटपुट को हम देखने के लिए इस तरीके से हम इसका आउटपुट देखेंगे. तो इससे क्या हो गया, ये ब्लैंक आपकी एक सीरीज क्रिएट हो गई, और इसके रिगार्डिंग क्या हो गया, एक दूसरा जो आउटपुट है प्रिंट, उससे क्या हो गया, ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई. ये आपका क्या हो गया, वन डायमेंशनल सीरीज है. तो वन डायमेंशनल सीरीज को इसका इस तरीके से आप इसको सीरीज से नथिंग वन डायमेंशनल डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम. तो ये आपका डेटा कॉलम के फॉर्म में इस तरीके से आप इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये आपकी ये डिस्प्ले ये आप रिप्रेजेंट कर रहा है 0, यानी कि 0 रो, एंड ये 1 रो, ये सेकंड रो, थर्ड और फोर्थ. इस तरीके से ये आपके रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. तो इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्डिंग करेंगे फॉर दी डेटा, हाउ टू इंसर्ट दी वैल्यू इन दी डेटा फ्रेम, हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रेम, हाउ टू print and visualize the data frame data and other things, and how to perform the basic operation on the data frames. So these for the next things we create, this is the reference for that.